Hello, good evening, everyone, and good evening, Raju Gulati Saab. Welcome to our webinar. I am so happy to have you here. I also welcome Mr. Hiranya Mahanta, who is CEO of iHub Gujarat. I welcome all the audience here on the Zoom platform and also on the Facebook iHub Gujarat live page on the live video. So we'll start with it. Great to have you, Gulati Saab. You are working with the UN Technology Lab, and I we can start off with a short introduction about yourself, about your career, about your life, sir. Okay, sure. Good evening, and thank you very much, sir, Aman, for giving this opportunity to have some interaction through this platform among the masses and among your ecosystem, where we can sensitize the people towards some good things while this such chaos is going around us, to refresh our minds. And about my introduction, I spent almost my 35 plus years with the corporate, with the government of Haryana, the central government ministry of HRD. And my career started with as typically into the medical imaging field, where we developed India's first brain CT scanner way back in 83, 84, along with a great team from the IITs. And then I joined Hartson in the projects department, where we kept building some good sustainable models. In Gurgaon, if people are aware of the electronic city, this was conceived through the papers up to the inception, and then coming to the full operation with the companies like Hughes, Alcatel, it was done under me only. And then the second stage came, where we shifted to the Ministry of HRD, who worked with there as a regional director with the Northwest region. The reason was the same, which we felt at when we were young, the gap between the education which we are getting and the industry requirements. We found very good thing. It was a nice experience. Then came back to Hartron again in 2015 to look into how this Digital India mission by the state under their skill and startup mission can be created. Then we built a great innovation center in 2017, where a lot of the industrial associations and the big ecosystem model was created, from touching the grassroots to the high end, like you find the UN also like co-located within that. So this was a journey. After retirement from the Hartron, the government of Haryana, UN picked me up for this United Nations Technology Innovation Labs. Or in due course, I will explain you how this whole system is working and what are these things are creating, how creating an impact in this ecosystem. Thank you, sir. It has been a wonderful journey, I think, for you, from the corporate to the government to the technological transformation of the country. जो डेटा रेवोल्यूशन हम अभी देख रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, खास करके हरियाणा स्टेट में. तो वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हियर. और आज जो हम सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशंस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये चीज को देखते हैं कि उससे लोगों को क्या फायदा होता है, सोसाइटी को क्या फायदा होता है. तो जो नॉर्मली हम समझते हैं कि स्टार्टअप करते हैं तो पैसा बनाने के लिए करना है, उससे हटके सही मायने में दुनिया के लिए, लोगों के लिए कुछ करना है, पैसे तो अपने आप आ जाएगा. तो इसमें सस्टेनेबिलिटी कैसे आ सकती है और यूनाइटेड नेशंस की रोल एसडीजीज में क्या है, और बाद में फिर उसको इनोवेशन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इसमें मैं आपका राय जानना चाहूंगा. यस, लेट अस स्टार्ट विद दिस छोटी सी एक जर्नी जो हमने स्टार्ट की थी. कैसे यूएन इसमें कैसे इंक्लूड हुआ और यूएन इसको कैसे देखता है. आपने जिक्र किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का. इट वाज अ मिशन जो यूनाइटेड नेशंस ने विद द इनपुट्स फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, दे कॉल देम एज एन पार्टनर, देयर पार्टनर कंट्रीज, उनसे जो इनपुट ली उसको इन्होंने एक मॉडल में डेवलप किया, जिसको इन्होंने गोल्स बनाए, जिन गोल्स के अगेंस्ट इन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की है जहां सोसाइटी और जहां पे इनको ये थॉट दिया जा सके कि everybody should be involved into this and nobody should be left behind this.
So we call this as a global goals also. ये 17 के करीब goals हैं और 17 is the most important, जिसको हम SDG 17 बोलते हैं, which is the partnerships. So the universal call is to take an action to end poverty, protect the planet, and to ensure that all people enjoy peace and prosperity on this globe. So that was the underline. And अगर आप देखेंगे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी बार बार इस चीज को कहते हैं, सबका साथ सबका विकास. So development for all, leaving nobody behind, is the underlying principle for this. You name any vertical, maybe in education, maybe in poverty, maybe in smart cities, maybe in health, to keep counting, ये सारी चीजें SDG गोल्स के अंदर इंटरलिंक होके कलेक्टिवली वर्टिकल्स के अंदर रखी गई है. और इनके अंदर जो 17 SDG गोल बनाए हैं, इनके अंदर 169 टारगेट्स भी बनाए गए. और हिंदुस्तान का, इंडिया का इसमें इसलिए मेजर रोल है. अगर हम रिकलेक्ट करें 2019 में जो SDG इंडेक्स का जो मेजर डाटा है इन्होंने लॉन्च किया था नीति आयोग में, नीति आयोग और UN ये इकट्ठे मिलकर इसके ऊपर बड़ी अच्छी तरह काम कर रहे हैं. उस डाटे ने एक नई रेवोल्यूशन इन थिंकिंग ले आके दी है. इट वाज बेसिकली हर एक स्टेट्स इन 17 गोल्स के अंदर और पार्टनरशिप को छोड़ते हुए बाकी गोल्स के अंदर कैसे कैसे काम कर रही हैं. और नीति आयोग ने सारी अपनी पॉलिसीज जो हैं उनको इन SDGs के अलोंग अलाइन कर दी है. इसलिए ये जो चीज है, इट हैज बिकम यू कैन से ए ब्लूप्रिंट, a global blueprint for the dignity, peace and prosperity of any country or any globe also. So इसके along अगर हम लोग starting from the grassroots to the top level, to start working along this, जो overall खुशहाली है, overall prosperity है, the innovation जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनके साथ जब align होती है, तो you will start finding there lot many opportunities to work along this path also. So हम इसको ये कहते हैं, इसके साथ SDGs को जब हम अलाइन करते हैं, बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ती भी हैं. जैसे हम कहते हैं कम्युनिटी लीडर्स हम लेते हैं इनके साथ, पॉलिटिशियंस आते हैं, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज आती हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी आती है, लीडिंग नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज आती हैं, रिलीजियस ग्रुप्स आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, डोनर्स इसके साथ जुड़ते हैं, आपके इसके साथ फाउंडेशंस हैं डिफरेंट वो जुड़ती हैं. एंड लाइक इस तरह से ये पूरा एक इकोसिस्टम अपने आप में ये काम कर रहा है. और ये नीति आयोग ने अपने उस SDG इंडेक्स के ऊपर भी लिखा, पूरे वर्ल्ड में अगर SDG 2030 मिशन को अचीव करना है तो उसके अंदर इंडिया का एक मेजर रोल है. सो उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखना शुरू कर रहे हैं. जी, जो पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था उसमें भी पूरा दुनिया ने कोशिश किया था कि हम उसको अचीव करने की ट्राई करें. हालांकि उसमें कामयाबी मिली बट पूरी नहीं मिली है. तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के आयाम पे आए हैं, क्योंकि हमको फिर लगा कि गोल अचीव करना ही मतलब नहीं है, उसको सस्टेनेबल भी रखना है, इंक्लूसिव भी रखना है, सभी लोगों को उसकी बेनिफिट भी मिलना चाहिए. तो जो कहते हैं कि वी कैन नॉट क्रिएट आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी अमिड्स ओशंस ऑफ पॉवर्टी, तो सब लोगों को मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया जो है वो बढ़ाने का है. तो उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे कि रूरल अर्बन डिवाइड को कैसे ब्रिज किया जा सकता है, और आपके माइंड में अभी तक क्या अच्छा काम हुआ है, इसमें कुछ आइडियाज दीजिए. यस, इसमें जैसे आपने अभी जिक्र किया टेक्नोलॉजी का भी, आप इसको टेक्नोलॉजी कैसे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको आपको थोड़ा सा जो हमारी यूनाइटेड नेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब है उसके बारे थोड़ा सा बताना चाहूँगा. जब इसको रिव्यू करने लगे 2015 से ये शुरू हुआ और 2020 तक इनको लगा भी अब 5 साल होने वाले हैं, इसके बीच में क्या क्या हमने अटेन किया है, कितने लोग इसके पीछे रह रहे हैं, जहां इसकी एक्सेलरेशन हो रही है, जहाँ इस मिशन को अचीवमेंट हो रही है, उसमें क्या चीज हेल्प कर रही है. सो वी फाउंड दैट टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग ए मेजर रोल इन द एक्सेलरेशन ऑफ द SDGs. So different verticals of UN started working very closely and came with different ideas also. So within UN, there is an Office of Information, Communication and Technology based in New York in their headquarters also. They came with the idea that अगर हमने कहीं इसमें काम करना है और टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन देना है, तो टेक्नोलॉजी का यूज हर एक पार्टनर स्टेट्स में, हर एक एरिया में अपने अपने तौर पे डिफरेंट स्टाइल से है, डिफरेंट तौर से उसको यूज किया जा सकता है. A technology which I am using in Europe
can be utilized over there, but within a different fine tuning. Similarly, the technology which we are using over there is of very good use for Egypt also, but some fine tuning is needed. And the local challenges are to be seen where this can become a big benefit. So they started building this United Nations Technology Innovation Labs with the partner states or the partner countries. The very first lab they built is in the Finland. The second they built in Egypt, then Malaysia also, and the fourth lab is in Haryana in India, where we have partnered with the government of Haryana, Department of Electronics and IT. So all facilitation is coming, and then हर एक lab इसके thematics को लेके चलती है अपने साथ. Like in India, we have taken 4 thematics जिसमें gender equality, woman entrepreneurship जिसे हम indirectly बोलें, is on the top, and then the health, education, quality in health, quality in education, and smart cities, smart communities. These are the 4 verticals which, based on the state's inputs, we have chosen to work on this. Similarly, बाकी countries में भी इस तरह का यूटिलाइजेशन उनके अलग-अलग थीमेटिक्स में काम कर रहे हैं. में सर्कुलर इकोनॉमी आती है, जिसमें एग्रीकल्चर आती है इजिप्ट में. सो डिफरेंट वर्टिकल्स के अंदर और टेक्नोलॉजी कहाँ बेनिफिट कर रही है. सो व्हाट वी फाउंड, दी आज की डेट में जो स्टार्टअप्स हैं वो टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन फुल रिस्क लेके आगे बढ़ाने की उसको कर रहे हैं. उनकी अडॉप्टेबिलिटी स्टार्टअप्स की बहुत ज्यादा है इनोवेशन को लेने की और उसको एग्जीक्यूट और ऑपरेशनलाइज करने की. So UN started thinking, why not to work this Antil Lab should work along with these ecosystems also. तो इन स्टार्टअप्स ने जो थॉट दिए थे उनको हमने अलाइन करना शुरू किया along with these thematics and the SDGs also. और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हमें इसमें समय लगी, मोस्ट ऑफ द, जैसे आपने भी कहा, जो SDGs के बारे है, even the startups are not aware of that. So recently about a year back हमने कुछ जैसे यूनिप था, एनवायरनमेंट का एक चल रहा था, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा था, तो हम कुछ स्टार्टअप्स को अपॉर्चुनिटी दिया उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और अपनी इनोवेशंस को दिखाने के लिए. एंड दे वर एप्रिशिएटेड इन सच ए वे दैट कुछ उनकी जो इनोवेशंस हैं दे हैव बीन टेकन टू इवन डिफरेंट कंट्रीज. सो इसका मकसद क्या हुआ जो अंतिल लैब्स है? इट इज अगेन ए प्लेटफॉर्म where we are connecting the dots available at different areas and with the different agencies. और UN के within जो projects चल रहे हैं उनको इनके साथ align करना, वो उसको कैसे कैसे हम आगे लेके चल रहे हैं, I will explain in due course of time also. ये इसका basically एक platform तैयार हो गया है जिसमें challenges जो बना रहे हैं लेकिन उनको impact में कैसे convert करना है. Taking the UN ecosystem along with that is becoming a big interesting program also. थैंक यू सर. अभी मैं गुजरात की थोड़ा बात करूं तो गुजरात गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी है. मतलब जो कॉलेज का बच्चा है वो कॉलेज खत्म करके फिर इनोवेट करेगा, उससे अच्छा है कि वो कॉलेज की टाइम से ही उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा. और जिसको आई हब गुजरात जो है एक नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में काम कर रहा है, तो इनोवेशन में कैसे उसको हो रहा है और कुछ इम्पैक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स और सस्टेनेबल स्टार्टअप्स के बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हिरणमय जी थोड़ा सा शेयर करें ताकि हम उसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा करें. माइक योर माइक इज नॉट. हिरणमय जी एक मिनट. इसके पहले मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि आपके कोई भी क्वेश्चंस हो पैनल के लिए तो जूम में जो है Q&A प्लेटफॉर्म है उसमें भी क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं और कमेंट्स में भी रेज कर सकते हैं. हम आपकी क्वेश्चंस को नोट कर रहे हैं और जितना होगा उतना हम क्वेश्चंस को आंसर भी करवाएंगे. और जो लोग फेसबुक पेज में हैं, लाइव वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी फेसबुक कमेंट पे अपना क्वेश्चंस भेज सकते हैं. बहुत खुशी की बात है कि गुजरात के कोने कोने से लोग जुड़ रहे हैं. मैंने देखा है कच्छ में से, नवसारी से और ऐसे बहुत ही दूर के जिले से भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं. मैं उन सबको अभिनंदन देता हूं कि आपने नॉलेज की बुक को ये कोरोना के समय में भी जारी रखा है और हमसे सतत जुड़ रहे हैं. थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट. जो लोग आउट ऑफ स्टेट से भी आ रहे हैं, कुछ लोग हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ बैंगलोर से भी ज्वाइन हो रहे हैं,
उन सबको भी मैं वेलकम कर रहा हूँ कि वेलकम टू दिस नॉलेज शेयरिंग सेशन। अब हिरणमय जी, कुड यू प्लीज ब्रीफ ऑन दी SSIP पॉलिसी एंड सम इम्पैक्टफुल स्टार्टअप्स? तो थैंक यू सर, थैंक यू राजीव जी, गुड आफ्टरनून। हम लोग 3-4 एरिया में मेजर फोकस कर रहे हैं इस पॉलिसी के द्वारा। गुजरात में इनोवेशन और स्टार्टअप्स की इकोसिस्टम करीब पिछले 2 डिकेड से काफी संस्थागत तरीके से बनाई जा रही है। चाहे ग्रास रूट इनोवेशंस की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की बात हो, चाहे पॉलिसी इनोवेशंस की बात हो। लेकिन एक सेगमेंट जो इस इकोसिस्टम में बहुत मेजर रोल प्ले करता है वो होता है एकेडमिक सिस्टम्स में जो इनोवेशंस होते हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो इनोवेशंस होते हैं, उसको हमारा स्टेट का इनोवेशन इकोसिस्टम की मेन स्ट्रीम पाइपलाइन में जोड़ना कैसा है। तो इसी आइडियाज को लेकर पिछले 4 साल से काफी मंथन हुआ और 2016 में इसके ऊपर में जो ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन है चुदासमा साहब, उन्होंने एक डेलिब्रेशन करी सब वाइस चांसलर के साथ। और उस डेलिब्रेशन से बेसिक सवाल ये पूछा गया कि क्या आपकी बच्चे सिर्फ पढ़ाई करने के बाद रोजगार मांगने के लिए जा सकते हैं या वो लोग रोजगार देने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। तो कुछ प्रोफेसर सर वाइस चांसलर ने कहा कि सर ऑलरेडी हमारे यूनिवर्सिटीज में कुछ इनोवेटर्स हैं जिन्होंने अपने इनोवेशंस को, अपने रिसर्च को मार्केट पे ले रहे हैं और अपने व्यवसाय चालू किए हैं। जब हमने उस टाइम पे एनालिसिस करने की कोशिश की तो पता चला पूरे गुजरात में हर एक यूनिवर्सिटी में 25-30 टीम्स तो ऐसे ही ग्रेजुएट हो रहे हैं जो अपने रिसर्च को मार्केट पे ले जा रहे हैं। तो उस जो 25-30 एग्जाम्पल हर यूनिवर्सिटी में बन रहे थे, हमने सोचा कि इस एक स्टेट की नाते उस चीज को 250 और 2500 कैसे किया जाए। तो ये जो ऑलरेडी जो एक ऑर्गेनिक तरीके से इकोसिस्टम बन रहा था, उसको गैल्वेनाइज कैसे किया जाए, उसको एक्सेलरेट कैसे किया जाए, ज्यादा से ज्यादा संख्या के इनोवेटर कैसे बनाए जाए और उन लोगों को किस तरीके से स्वावलंबी बनने के लिए सपोर्ट सिस्टम दिया जाए। तो उसी चीज को ढांचागत तरीके से सपोर्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी बनाया और हमने 3 लेवल पे इंटरवेंशन करी। पहली चीज हमने सोचा इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इनोवेशन सेंटर्स हैं, उनकी जो एनेबलिंग लोग हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कराना, उनकी एक विजन डेवलप करना, उनके लिए एक रोड मैप बनाना, ताकि अगले 5 महीना, 5 साल और 25 साल में वो खुद को कहाँ देखते हैं इनोवेशन इकोसिस्टम में। वो एक स्टेज रहा। दूसरा काम रहा कि जो इनोवेटर्स हैं उनको डायरेक्ट सपोर्ट करना है 3 लेवल पे। लेवल 1, अगर वो अच्छे शोध करते हैं तो उनको पैटेंट फाइलिंग और IP में सपोर्ट देना है। हम उनको 25,000 रुपीज अपफ्रंट फाइनेंस सपोर्ट करते हैं इंडियन पैटेंट फाइल करने के लिए। अप टू 1 लाख रुपीज उनको PCT फाइल करने के लिए मिलता है। और मैंडेट है 1000 टीम्स को हम हर साल सपोर्ट कर सकते हैं। हिरणमय जी, कुछ अच्छा स्टार्टअप्स के बारे में थोड़ा बताएंगे? ओके, सो हम लोग जब इस प्रोसेस में चालू किया, मैं एक उदाहरण देता हूँ राजीव जी, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज रहता है कि वेस्ट मैनेजमेंट आज की तारीख में, बिकॉज वेस्ट जो है उसका डेफिनेशन बदल रहा है। जैसे कि आज की तारीख में मॉडर्न डेफिनेशन में ये कहते हैं कि वेस्ट इज ए रॉ मटेरियल व्हिच यूजेबिलिटी इज येट टू बी फाउंड। तो हमने सोचा कि क्यों वेस्ट को लेकर हम लोग एक नया इनोवेशन मूवमेंट चालू कर सकते हैं। तो हमने एक वेस्ट इनोवेशन चैलेंज चालू किया था जिसमें करीब 25 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं ऑलरेडी। एक स्टार्टअप है जो क्या करता है, जितने भी मंदिर, मस्जिद और ऐसे होली स्पेसेस हैं जहाँ पे नारियल यूज होता है, जहाँ पे ऐसे ऑफरिंग्स होते हैं, उसको ऑफरिंग्स करने के बाद ये लोग लेके नदी में डाल देते थे। और उसमें आप जानते हैं जो फ्लावर्स होते हैं या जो भी चीजें हम ऑफरिंग करते हैं उसमें कार्सिनोजेनिक मटेरियल रहता है। और वो साबरमती में सीधा जाने के बाद वो फिर सीधा जो है डायरेक्टली वाटर को पॉल्यूट करता था और फिर ह्यूमन चेन में एंटर करता था। तो ये स्टार्टअप ने सबसे पहले कहा कि हम एक टेक्नोलॉजी बनाएंगे जो इसको अपसाइकिल कर सकता है। पहले तो रिसाइकिल करेंगे, फिर इसको अपसाइकिल करेंगे और प्रोडक्ट बना के मार्केट पे आगे ले जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह कि जब बच्चों ने ये आइडिया लेके आया था तो वो सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे। तो हमने उनको कहा कि हम प्रोटोटाइपिंग का ग्रांट देते हैं 1000 टीम्स को हर साल 2 लाख रुपीज का। तो उन्होंने उसके ग्रांट लिया, अपनी एक मशीन बनाई और सबसे पहले जब उन्होंने यूनिवर्सिटी के पास आके बोला कि सर हमें एक जगह दे दो जहाँ पे हम ये कचरा रखेंगे, क्योंकि हमारे कॉलेज में तो क्लासरूम और लैब के अलावा हमें और कोई पहचानेगा नहीं। तो यूनिवर्सिटी वाज काइंड एनफ, उनको एक छोटा सा गैरेज दिया यहाँ पे एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उनको एक चाबी मिली जिसमें वो दिन रात कॉलेज के बाद आके वहाँ काम कर सकते थे। तो एक कल्चर बदला कि जो सुबह से शाम कॉलेज जाओ, असाइनमेंट लिखो, टीचर्स की डांट सुनो, पढ़ाई करो, एग्जाम करो, और उसके बावजूद अपने आइडियाज के आसपास, अपने सपना के आसपास कुछ नया चीज करो। जब ये बच्चे लोग फाइनल ईयर तक पहुंचे तब तक इनकी कंपनी का रेवेन्यू 25 लाख रुपए हो गया था। अब मैं उनको जो पूछा कि अभी आप क्या करना चाहते हो, कहते हैं सर अभी हम सिर्फ 2 लोग सस्टेनेबल नहीं बने हैं, हम 5 लोगों को जॉब भी दे दिया है जो डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ाई करते थे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप देखिए कि ये बच्चों की उम्र कई 20-21 साल की होती है, और अब पहले हमारे देश का चैलेंज ये था कि हम बच्चा जब कॉलेज से पढ़ के निकलेगा हम उनको नौकरी कैसे दें।
अब वो लोग जब इस चीज को सॉल्व करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि हम उनको नौकरी कैसे दें, हम उनको ये सोचने की जरूरत है कि वो लोग ज्यादा नौकरी पैदा करें, उसके लिए हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। इसीलिए इनोवेशन सेंटर, इसीलिए इंक्यूबेशन सेंटर सब पाइपलाइन की जरूरत है। तो हम लोग 3-4 चीज काम कर रहे हैं। ऐसे स्टार्टअप्स को आइडिया से प्रोटोटाइप बनाने में मदद कर रहे हैं, प्रोटोटाइप को मार्केट पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और उन लोगों को स्केल करके एक सिटी के बाहर लेके एक स्टेट के अंदर और फिर बाद में नेशनल लेवल पे किस तरीके से इनको स्केल कर सकते हैं, उसकी लेवल पे हम लोग काम काज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जॉब इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम गुजरात में और यंग बनता जा रहा है कि यंग इनोवेटर्स आ रहे हैं, क्योंकि 17 साल में वो इनोवेटर बन रहा है, उसको मेंटर की अवेलेबिलिटी मिल रही है। तो ये सब होता रहता है। तो इसमें सर आपको ये पूछना है कि हरियाणा इकोसिस्टम में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कुछ आपका कंट्रीब्यूशन और कुछ अच्छा स्टार्टअप्स जो आपने वहां देखे हो। मैं बहुत अच्छा लगा हिमेश जी आपसे ये सुन के दैट यू स्टार्टेड बिल्डिंग ए कल्चर। तो मैं इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। दिस इज लाइक जो कहते हैं भी आपके दिल से जो बात निकलती है, कल्चर बिल्ड करना, एक कम्युनिटी क्रिएट करना फ्रॉम टेकिंग द यूथ अलोंग विद अस। जो यूथ आज की डेट में हम सारे कह रहे हैं हिंदुस्तान में यूथ इज ए मेजर पावर एंड मेजर परसेंटेज, and to utilize them towards becoming an entrepreneur and not looking for the job. And गुजरात गवर्नमेंट ने अगर इस चीज को इनिशिएटिव को इस एंगल से लेके जा रहे हैं जो आपने बड़ा ब्रीफली बताया, तो we feel proud of every state and every country where these type of things are happening. I am really salute you for the starting this startup। जो आपका मिशन है उसको स्टूडेंट्स के साथ इंक्लूड करके आप बढ़ रहे हैं। और हरियाणा में हमने जो ये एक्सपेरिमेंट है, हमने इसको बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल को हमने डिवाइस किया था, जिसमें जो हमने जो मेन इनमें देखा गया था, जो आपने भी बताया, इनको जो रियल प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक्सपोजर कैसे दिया जा सकता है। सो दैट चैनल शुड बी ओपन where they can just start walking in and then can sit with those entrepreneurs, those startups, and can be like in a part of that journey which startups have already started. तो पूरे हब को जो हमने बनाया है, जिसमें नेस्कॉम 10,000 स्टार्टअप, इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन भी वहां जुड़ी हुई है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आईओटी नॉर्थ इंडिया का पहला और इंडिया का सेकंड जो था वो वहां जुड़ा हुआ था, स्किलिंग पोर्शन जुड़ा हुआ है वहां पे, और अंतिल लैब वहां पे जुड़ी हुई है। इस पूरे हब को हमने हब एंड स्पोक मॉडल से यूनिवर्सिटीज के साथ लिंक किया, because Ministry of HRD also is taking lot many initiative for creating the innovation cells in the institutions, all those things. तो कहने की बात यह है, इस तरह का जो सिस्टम ऑफ क्रिएटिंग दी एंटरप्रेन्योर सेल्स और कई सालों से चल रहा है, आज से नहीं है, लेकिन जो हमारा जो पाथ था उसको प्रैक्टिकली प्रूवन, अफोर्डेबल और स्केलेबल चीजों के साथ काम करवाने का, स्टूडेंट को उनका माइंडसेट उस तरफ के लेके जाने का, सो दैट हम उसको स्किलिंग रीस्किलिंग साथ साथ में ऐसी कैसे कर सकें, उन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स काम कर सकें, ये एक चैनल शुरू हो गई है हब एंड स्पोक मॉडल में। सो इन टाइम टू टाइम कॉलेजेस हमें रिक्वेस्ट करते हैं भी हम अपना एक बैच आपको कुछ घंटे के लिए वहां भेज रहे हैं। उसका सिर्फ एक, जैसे होता है एक आदमी टेम्पल में जाता है, कुछ टाइम के लिए जाता है, बहुत कुछ सोच के आता है, कुछ मांग के आता है उस टेम्पल से। तो इस तरह से दे आर कमिंग टू दिस हब टू थिंक, टू ओपन देयर माइंड, और उसमें जो जो इनोवेशंस हो रही हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के थ्रू है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के थ्रू है, चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थ्रू है, तो हर एक आदमी का इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। सो सेकंड स्टेज हम ये लेते हैं, जैसे ये फोर्थ आपके सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बैच के लोग जैसे आते हैं, इनके साथ जिसके जब हम उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोगों के इंटरेस्ट को देख लेते हैं। देन व्हेन देयर इंटर्नशिप स्टार्ट होती है, कुछ होती है, तो ट्राई करते हैं जो स्टार्टअप्स हैं उनको ये ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं कॉलेज की तरफ से हमें मिलने शुरू हो जाए, बिकॉज वी फाउंड देयर इज एन ए ह्यूज basically two major things which the startups require in the course of their journey. One is your finances and the second is your manpower. अगर आप सारी कैलकुलेशन करके देखो तो 70% of your finances are drained by their manpower and the high skilled people are always like on the top, but इनको साथ में कुछ एग्जीक्यूशन लेवल के भी होने चाहिए। सिमिलरली हमने जो CSC की जो कॉमन सर्विस सेंटर्स थे, कुछ जो स्टार्टअप्स टेस्ट करते हैं इन चीजों को,
और उनको जैसे आप कहते हो सॉइल के लिए हमने कार्ड बनाने का एक मिशन शुरू हुआ था, तो लोगों ने उसके लिए IoT के थ्रू बेस्ड कुछ ऐसे इनोवेशंस की थी जिसको बना के तो बैठे थे, लेकिन दे नेवर हैड एन मैन पावर टू टेस्ट इट इन द फील्ड। तो हमने CSCs के VLEs को, जो मोस्ट ऑफ देम जो हरियाणा में हैं वो टेक्निकली क्वालिफाइड है, उनको लगाया, और उसके साथ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके करीब विलेजेस के साथ बनी हुई हैं, उनके ग्रुप को उनके साथ एसोसिएट किया, सो दैट अगर लैब से, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से, अदर से उनको कोई जरूरत पड़ती है रिसोर्सेज के, दे स्टार्ट वर्किंग अलोंग विद दैट एंड बिल्डिंग इन ए मेजर लाइन ऑफ ट्रेन्ड मैन पावर्स इनटू दैट। सो ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल कदम है जो ग्रास रूट पे जब आप काम करने लगते हो तभी उसका लगता है। तो अंतिल ने इसमें क्या रोल अदा किया, इन लोगों को, जैसे मैंने कहा फाइनेंस और मैन पावर का इसको रहता है। Until also started bringing the big projects, working on big projects at the international level. Like हमारे पास एक UN Habitat से प्रोजेक्ट आया जिसमें लैंड रजिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान के ऊपर ब्लॉकचेन यूज करके हम काम कर रहे हैं, इज ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट। सेकंड हमारे पास प्रोजेक्ट था जो UNOICT ने करवाया, जिसको गो ट्रेवल करके थे, जो एक एप्लीकेशन थी टू ट्रैक द टेररिज्म। आपका उसके ऊपर उसको कैसे आप ट्रैक करते हैं, उसके साथ कैसे आप करते हैं। इन लोगों के लिए बड़ी हाई एंड की जो डेवलपर थे उनको हमें हायर करना था, अपने साथ रखना था। सो इसी पर पैरेलली हमारे पास इस तरह से जब प्रोजेक्ट आने शुरू हुए तो वी स्टार्टेड यूटिलाइजिंग द स्पेशलाइज्ड स्टार्टअप जो इनमें काम कर रही हैं, इनके साथ लिंक करने शुरू कर दिए हैं ऑन मॉड्यूलर बेसिस पे। दैट मीन्स देयर मैन पावर या उनको जो फाइनेंसेस हैं, इनडायरेक्टली ब्रिंगिंग द प्रोजेक्ट्स बिफोर देम, वी स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग टू दैट। सो ये एक बड़ा एकेडेमिया का एट इंटरनेशनल लेवल पे आपको प्रोजेक्ट्स, उनका एक्सपोजर एकेडेमिया को अलॉन्ग विद इससे कैसे जाना है वो मिलना शुरू हो गया। थर्ड जो मैं इसमें आपको जिक्र करूंगा, जब आप रीस्किलिंग की बात करते हो, बिकॉज हमारा जो हमने गैप देखा है, आपने बहुत उसको अच्छी तरह से बताया भी, आपने जो टीचर्स हैं, जो मेंटर्स हैं, उनको सेंसिटाइज करना शुरू कर दिया है उन प्रैक्टिकल चीजों में। दिस इज द नीड ऑफ द आवर and they only can act at that level as the real mentors to accelerate the real thoughts, the ideas into the practical form. So उसके लिए जो एसोसिएशंस हैं, अगर नेस्कॉम का हम नाम लें तो फ्यूचर स्किल्स के ऊपर उन्होंने 10 स्किल्स के लिए, अभी देखा होगा आपने, फ्री ऑफ कॉस्ट वो कुछ कोर्सेज कराने शुरू किया ऑन AI, ऑन IoT एंड ऑल दोस थिंग्स। इसी तरह अंतिल भी कुछ लेके आई है इस तरह से कोर्सेज, उनको आगे एक्सेलरेट करने की कोशिश करी है। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स which are I think that the academia should adopt from the experiences of the hub which we created over here. थैंक यू सर। ये पूरा सेशन का मतलब भी वही है कि ये सब जो डिटेल्स हैं हमारे एकेडमी को पहुंचे। मैं एक सवाल आपसे, अभी तो बहुत सारे सवाल आ गए हैं तो हमको बीच में सवाल भी लेने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने पूछा है कि कोविड में बहुत सारे चैलेंजेस आए और हमारे बच्चों ने खास करके लो कॉस्ट वेंटिलेटर, मास्क, PPE ये सब में सिर्फ गुजरात में 3-4 इनोवेशन हो गए थे। पूरा भारत में तो हम बोल सकते हैं कि 50 तो लो कॉस्ट वेंटिलेटर के ऑप्शंस आ गए हैं, उसमें से कुछ तो बहुत ही सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिकल ऑप्शन तो होगा ही, मुझे तो बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस है। तो एक सवाल ये है कि आपके लैब के पास, अंटिल के पास SDG के लिए प्रॉब्लम डेफिनेशंस है क्या जो हमारे स्टार्टअप्स काम कर सकते हैं? तो इसमें 2 लाइन में बताएंगे कि क्विकली। मैं बताता हूँ इसमें। अगर आप अभी रिसेंटली देखें, हम यूनिडो के साथ चैलेंजेस ओपन होता क्या है, दिस इज UN ऑलवेज वर्क इन ए पार्टनरशिप मोड। यूनिडो ने अभी 31 को कल ही एक अपना ये कह लो चैलेंजेस उन्होंने दिए थे जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड थे, जो कार्बन एमिशंस जो हैं वो अलग अलग जगह पे, जैसे मे बी इन द इंडस्ट्री, मे बी द एयर कंडीशनिंग, मे बी इन द पंपिंग, मे बी इन द लाइक मोटर्स, मे बी इन द एनवायरनमेंट और द कंजम्पशन ऑफ द फ्यूल्स। इसमें उन्होंने 4 अलग अलग वर्टिकल्स लेके उसके अंदर ये स्टेटमेंट्स दी थी। And Antil was as a backbone supporting these challenges along with as a partner. Agni was also a partner into that. Startup India was also a partner into that. So ये जो problems industry को हम सामने लेके आते हैं, उसको define करते हैं, उनको deliberate करते हैं, तो Antil is always in a part of them and this is regularly आती रहती हैं problem statements. And मैं उनको चाहूँगा भी, अभी हमने उसको
yes, you are right, the awareness of these type of challenges, very few people know about that. So इसको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं? एक अकेला वेंटिलेटर ही नहीं है जिसके ऊपर हमने काम करना है. जो मैंने, जैसे आपने कहा, वेंटिलेटर बहुत जगह पे बन के आ गए, और इसके ऊपर जो मुझे सबसे बड़ा इसमें एक चीज सोचने में मजबूर कर दिया था, जो मैं मेडिकल फील्ड में, मुझे पता है हमारे यहाँ पे दुख की रग क्या थी. जो सबसे बड़ी चीज है जिसमें आप गुजरात कैन टेक एन इनिशिएटिव इनटू दैट, एक आप वर्टिकल मे बी इन द हेल्थ for what you call the standards in healthcare, testing of the equipments which people create. गवर्नमेंट की सपोर्ट से वो करीब लेके आओ, अपनी स्टेट के करीब लेके आओ, जहाँ पे innovations can be endorsed for those, and the people at the student level sensitize. जब हम कहते हैं यूरोपियन नॉर्म्स हैं, यूरोप के हम वेंटिलेटर्स आंख मीच के खरीद लेते हैं, दे दो स्टैंडर्ड्स. हम जब ऑटोमोबाइल में जाते हैं, how many people or the students know about the European standards at the micro level? That is the need of the hour if you have to translate your innovations at the international platform. So उस तरह का आप initiative within the institutions, within the universities, कुछ एक group create करके, एक community create करके उसके ऊपर start कर सकते हैं. It's the need of the hour. All those innovations are lying ideal because nobody is there to accelerate for their final testing and all those. थैंक यू सर, ये आपने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है, और स्टैंडर्ड्स के बारे में और क्वालिटी के बारे में अवेयरनेस क्रिएशन के लिए भी हम जरूर काम करेंगे. आपको मैं पक्का बता सकता हूं कि हमारे पास जो मेंटर पूल है, जिसमें कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, अदर टीचिंग लोग हैं, जो लोग टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से हैं, उनका पूरा फौज इनोवेशन में करने के लिए तैयार है, और ऐसे ही प्रॉब्लम्स को ढूंढ रहे हैं. ज्यादातर लोग प्रॉब्लम्स रख के सॉल्यूशन ढूंढेंगे, हमारे पास इनोवेटर्स हैं, हम अभी प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हैं. तो उसमें एक क्वेश्चन डॉक्टर सुब्रांशु गोस्वामी से आया है कि रोबस्ट इनोवेशन के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी मेंटरशिप चाहिए. तो वो बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डिसिप्लिन स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो इकोसिस्टम में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च करने के लिए गुजरात का भी बहुत अच्छा अनुभव है. मैं आपसे पूछना है कि आपका क्या अनुभव रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? आज एक चीज तो यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो चुकी है, द टेक्नोलॉजीज आर मर्जिंग विद इन, एम्बेड हो रही हैं. अगर मैं सिंपल एग्जांपल लेके चले, सबको आज की डेट में वेंटिलेटर का सबके दिमाग में चीज है. वेंटिलेटर को एक प्रोजेक्ट को सामने रखें, इसमें मैकेनिकल मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसमें 3D प्रिंटिंग की डिजाइनिंग इन्वॉल्व है, इसमें प्लास्टिक एंड उसके मटेरियल्स इन्वॉल्व हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल इन्वॉल्व है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है, इसमें इवन अप टू दैट द डिजाइनिंग ऑफ द PCBs एंड हाउ टू मिनिएचराइज दैट, वो वहां तक सारी चीजें हैं. सो जो आपका ये है नेक्स्ट जनरेशन जो आपकी आ रही है, जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी हो रहा है, ये इनको सारी इंस्टीट्यूशंस को तैयार होकर ये चलना पड़ेगा. ठीक है, हम फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में इनको सारे सब्जेक्ट एज ए इंट्रोडक्टरी पढ़ा देते हैं. मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो सबसे पहला काम मैंने नौकरी का नहीं किया. मैंने ये देखा, मैं मैकेनिकल में जीरो था, because nothing, I was not knowing much of the thing. I found as I went to as a training to a shop floor of क्या बोलते हैं, स्पिनिंग मिल्स के अंदर. सो उसके ऊपर जो मेरे मैकेनिकल के फंडे थे वो सारे क्लियर होने शुरू हुए. इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एक लेवल पर क्लियर हो गए थे, विच हेल्प मी इन व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन द मेडिकल CT स्कैनर्स के ऊपर, जहां सारी चीजों के साथ आपको मिलकर डिसीजन कलेक्टिवली लेना पड़ता था. सो मेंटली वी शुड बी रेडी that if you are a CS or a ECE or as a mechanical, that doesn't mean that is the only field in which you are working. You must have seen even the mechanical people started going towards the CS, toward the coding side also. And sometimes I can give you huge number of examples where mechanical engineers are now designing the electronic part and the chemical engineers are designing the mechanical part also. So those skills now, isn't it time where these mentors at your level start embedding and can utilizing that. और ये जो hubs हैं हमने बनाई हुई हैं, इनमें अगर आप देखेंगे collectively अगर काम कर रहे हैं, practically they are doing that. They are taking each other's help, sitting with each other and doing that. सर, आपने जो बताया ये तो सही कहा है कि अभी इकोसिस्टम को और भी अच्छा करना है,
तो उसमें इंटरडिसिप्लिनरी को बढ़ावा देना है। तो IHUB के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि एक पोरबंदर का बच्चा है, वो केमिकल इंजीनियरिंग में कुछ काम कर रहा है और उसका जो प्रोफेसर है वो 500 किलोमीटर तो दूसरा कॉलेज में है, तो उसका मैपिंग हिरणमय जी कर रहे हैं, उसका डेटाबेस कर रहे हैं, तो उसका इन्वेंट्री करके वो डाल सकता है, पूछ सकता है कि मुझे ऐसा मेंटर की जरूरत है, तो उसको हम डायरेक्ट कनेक्शन करके कर सकते हैं। और SSIP पॉलिसी के अंदर हम इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक नहीं है, 2 कॉलेज 2 यूनिवर्सिटी अक्रॉस डिपार्टमेंट कोई भी एक एडहॉक टीम बना के, मिशन टीम बना के एक प्रॉब्लम के ऊपर काम भी कर सकते हैं, उसके लिए ग्रांट भी मिलता है। और उनका आइडिया को पैटर्न करने के लिए हम 25,000 की पैटर्न के लिए ग्रांट भी देते हैं। अभी एक कमेंट में आया कि 50,000 मिला है 2 पैटर्न्स के लिए, उनका नाम तो नहीं पता चल रहा है लेकिन गैलेक्सी M20 लिखा है। बट ऐसे बहुत सारे हैं जो गुजरात में जिनको ग्रांट मिल रहा है। और हिरणमय जी, आप 2 लाइन में बताएंगे कि ग्रांट का पैटर्न में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है SSIP में, ताकि राजीव सर को पता चले कि गुजरात में क्या हो रहा है। राजीव जी, गुजरात इकोनॉमिक की तो फ्रंट एंड का स्टेट है, लेकिन नॉलेज इकोनॉमी में हम करीब 13वां-14वां नंबर स्टेट थे 5 साल पहले। और इस पॉलिसी की इंटरवेंशन के बाद हमारा पैटेंट फाइलिंग रेट 6 गुना बढ़ गया है पिछले 3 साल से, और पब्लिकेशन रेट भी 3 गुना बढ़ गया है। अब ग्रांटिंग का सिचुएशन 3 साल बाद पता चलेगा। तो शुरुआत में जब हम ये रेट बढ़ा रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि कहीं क्वांटिटी का गेम तो नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि एक बार जब हम क्वांटिटी की रफ्तार में जाएंगे और प्रोसेस ठीक करेंगे तो क्वालिटी का गेम भी आएगा, क्योंकि अभी हमारा जो दुनिया में कहीं पे बिना क्वांटिटी का क्वालिटी नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम लोग थोड़े से प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हैं, और हमारा टारगेट बहुत सिंपल है, 1000 IP फाइल करेंगे, करीब उस साल के एंड तक हम 500 के आसपास पब्लिश करेंगे। Every year 33% should get at least re-examinations and queries need to be solved, और at least 100 of these technologies should get commercialized। हम सिर्फ अवेयरनेस पे नहीं रुकना चाहते, हम चाहते हैं कि वो छोटे से डोर ओपनिंग का नया सिस्टम क्यों ना बनाएं। मैं जैसे कि एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ। अभी आपके घर में आज की तारीख में अगर आप ताला लगाते हैं तो मेटालिक ताला लगाते हैं आप लोग, उसमें चाबी होगा और ताला लगाते हैं। तो एक बच्चा मुझे कहता है, साहब ये ताला क्यों डिजिटल लॉक क्यों नहीं हो सकता, मैं ब्लूटूथ से, मैं मेरे पासपोर्ट से ताला क्यों नहीं खोल सकता हूँ, मैं चाबी लेके क्यों घूमूं, मेरे जेब से गायब हो जाता है। तो मैंने उसको हंस के उड़ा दिया था। मैंने बोला कैसी बातें करता है, कोई घर के आदमी ताला छोड़ के तेरा और डिजिटल मोबाइल फोन लेके घूमेगा। तो कहता सर कुछ लेने की जरूरत नहीं, मोबाइल में ब्लूटूथ होता है, मेरे पासपोर्ट होगा और मैं ओपन करूंगा तो ताला खुल जाएगा। 2 साल पहले उसने आइडिया दिया था, तो मैंने बोला कि क्या दुनिया में ऐसे ताला नहीं मिलता है, तो उसने मुझे कहा सर ताला मिलता है, नहीं मिलता, लेकिन किसी ने पैटेंट फाइल नहीं किया है। तो मैंने कहा तो फाइल करो, कितना रुपया चाहिए, तो उसने कहा 10,000 रुपए दे दो मैं कर दूंगा। पैटेंट फाइल किया। इंटरेस्टिंगली इंडिया में किसी ने क्लेम नहीं किया था, गोदरेज से लेकर कोई कंपनी ने इस डायरेक्शन में सोचा नहीं था कि डिजिटल ताला खुलनी चाहिए मोबाइल से। आज की तारीख में वो स्टार्टअप, और बाय द वे वो बच्चा 6 बार में पास हुआ अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री, क्योंकि उसको मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स में रस हो गया। लेकिन हमारा यूनिवर्सिटी का रस वो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं थी, उसकी मार्कशीट्स में थी। और कहीं ना कहीं यहाँ हम थोड़े पूचर बन जाते हैं पूरे सिस्टम में। लेकिन फिर भी उस बच्चा ने कहा साहब मैं पुणे में इनक्यूबेटर में जा रहा हूँ, डिग्री जब मिलेगा तो भेज देना, लेकिन मैं स्टार्टअप बना के लौटूंगा। आज की तारीख में उस कंपनी का टर्नओवर 27 करोड़ रुपया है। उसको 2 साल पहले डिग्री मिला। लेकिन ये इंटरेस्टिंग केस है कि अगर आप बच्चों को नॉलेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और बिजनेस मॉडल, ये तीनों को इंटीग्रेट करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक सरस्वती और लक्ष्मी का मिलन हो सकता है। सर ऐसे तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं हमारे गुजरात में। और दूसरा एक गर्व की बात भी ऐसा है कि हमारे यहाँ पे इतने सारे मेंटर्स हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 हैकाथॉन खुद से हैंडल किए हैं विद इन द लास्ट 1 ईयर। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से लेके, और जो बहुत सारे जो अभी आए हैं, कोविड-19 हैकाथॉन अभी रिसेंटली आया, वर्चुअल हैकाथॉन उसमें भी किया है। तो वी हैव अ आर्मी ऑफ पीपल हु आर गुड इन कंडक्टिंग हैकाथॉन्स। तो इकोसिस्टम एनेबलर्स की एक फौज है। तो अभी आप 10 लाख बच्चे हर साल नया नया लेके आओ, तो सबको हम ये साइकिल में डाल के उनको 0 to 1 मैच्योर करके आगे भेज सकते हैं, ताकि वो नेक्स्ट लेवल पे जाएं और आपकी लैब का लाभार्थी बने। तो ऐसा ही हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी स्टार्टअप्स हैं, एक पार्टनरशिप हो जाए इवेंट लैब, इवेंट टेक्नोलॉजी लैब और IHUB के साथ। और जो बच्चे आइडिया स्टेज में हैं उनको POC टू प्रोडक्ट वो हम लाके दे देंगे। प्रोडक्ट में लाने के बाद उसको फाइन ट्यूनिंग करके, गो टू मार्केट करके, फाइनेंस और HR में कॉम्बिनेशन करके उनको स्टार्टअप की दुनिया में पूरी तरीके से लगाने के लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत रहेगी। तो वैसे क्या कर सकता है, हम साथ में क्या कर सकते हैं? बिल्कुल
मैं आपको इससे पहले एक छोटी सी चीज एक और यहाँ पे आपको फ्लैग करना चाहूंगा। जब आपने इंटरडिसिप्लिनरी की बात की, यूएन का एक और बड़ी अच्छी पार्टनर करके एक काम कर रहा है। हम आपने देखा होगा प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जब ये बाहर जाते हैं तो जो आपकी इनोवेशंस हैं उनको मैनेज करना और ये करना, दे हैव गॉटन ए प्रोग्राम जिसको हम PRME करके बोलते हैं। दिस इज प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट एजुकेशन। तो basically the universities or the education institution can become a part of this movement. उसमें क्या कर रहे हैं, it is not only the technologies which we are bringing at the front end. We need also the managers who can manage, who can understand this. Yes. तो that is again like interdisciplinary की जब बात आती है तो हमने future managers जो create करने हैं, वो इसमें PRME में काफी sensitization है इसकी on the SDGs platform. You can look into like taking this inclusion into this. And parallelly जब मैं इसकी ये बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में एक चीज और भी आ रही है, मैं अगर आपको यहाँ फ्लैग करूँ। आज की डेट में जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल बिजनेस की बात कर रहे हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, अभी जब कोविड नहीं हैपन हुआ था उससे अबाउट 2 months बैक एक न्यूज फ्लैश हो रही थी CNN में, जिसने ये कहा गया था सम कपल ऑफ $1 trillion आर टू बी इन्वेस्टेड इन द ESG कंपनीज। अब ESG कंपनीज उस वक्त सोच में भी नहीं आता था ये क्या चीजें हैं क्या नहीं है, बट देयर इज एन अगेन ए मूवमेंट व्हिच इज कमिंग ऑन, व्हिच इज ऑन द एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस के ऊपर इंडिकेटर्स बने हैं। जो बिग कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट तभी करेंगे व्हेन दे विल लुक इनटू दोस फिल्टर्स ऑफ द ESGs। सो हमें इस चीज को स्टूडेंट्स में अभी से अगर इनकलकेट करने चल जाएं, जो चीजें हम एज ए UN में बैठ के, अंतिल लैब में बैठ के, एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, तो इनका जो फ्यूचर है, मेरा एक अगर स्टार्टअप है उसको मैं अगर ESGs के साथ, अब बहुत बड़ी बात है ये, अगर बोलने के साथ जाएं और करने के, लोग इसको आज समझेंगे भी नहीं, बट आई ऑलवेज बिलीव in the concept of like if it is a startup, it should keep telling the stupid things and accepting the stupid things also. But I can ensure this is not a stupid thing, is in a future where the ESG is going to be a norm for addressing any investment in a big companies or the startups. If they will be ready, the innovations, once you say it is an IP, if some factors of those ESGs are inbuilt into that, taking care of the environment, the social and the governance part into that, it will automatically be embedded into that channel also. So that two things which I wanted at the academy level, the sensitization is needed. And then now your query about the partnerships. In the beginning also I said of the SDG from 1 to 17, I always start with SDG 17, which is the partnership. That partnership may be on a virtual mode, may be on a physical mode, whatever the mode is, it is the need of the hour. Because अगर आपने आज भी देखा होगा, बड़े बड़े जो आपके IP लेके कंपनियां बैठी थी, they have opened their IPs to manufacture the ventilators. They don't want to keep it. The companies who are sitting with the online education platforms, they have thrown their premier education lines to the student at this moment. What does this mean? This means that now it is a time where the impact, how this technology is creating impact and how this can be adopted at the fast rate is the need of the hour. So this only can happen only when there is in a corporations, there is in a what you call, जब मैंने बीच में बोला, we have to build the communities. Israel सिर्फ एक ही चीज के लिए successful है because they have built the communities which can fight in any urgency. So हमने वो pockets हर एक state level पे, हर एक institution level पे build करनी है, which can together come whenever at the forefront, whenever there is a big challenge to meet. एक चीज मैं यहाँ पे और करूँगा, मैं पिछले दिनों एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ रहा था जो मैं आजकल पता नहीं क्यों मैं मन से प्रमोट करता हूँ। आज की डेट में हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं डाटा के थ्रू। When in due course of time ये डाटा और बढ़ेगा। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर लोगों ने बात करनी बड़ी सीरियसली शुरू कर दी है। When we started looking into that, when we are like from all angles,
we are like engulfed with the data. Now the ethics to use data for the good is coming front. Japan is a country which started thinking after the industrial revolution or the industrial revolution 4.0, जब industry 4.0 की हम बात कर रहे हैं, where the IoT, AI, robotics, 3D, and then we are transferring everything through our net and utilizing it at the maximum level these days also, and coming days also it is going to increase. They started talking of the society 5.0. This is the norm where these technologies will be used for the benefit of the societies. Just take a small example, the aging people in healthcare. उसके ऊपर उनको डोर स्टेप आपको जो हेल्थ केयर पहुंचानी है वो आप कैसे पहुंचा सकते हैं? Technically speaking, time will come when these technologies will help you what you require and at what particular time you require to minimize your requirements and minimize your inventories and all those things. So this is going to be a next norm for the day. And उसके साथ साथ मैं एक चीज और फ्लैग करना चाहूंगा, मैं इसको क्यों आपके साथ एक करना चाह रहा हूँ. These are something which the academia, which the students may require at this time. एक ट्रस्ट की बात आ रही है. When everybody starting, मुझे एक recently एक इंटरेक्शन में हम थे, उसने एक बेंगलोर के एक फूड चेन की बात बताई. To build a trust is now the next norm. उसने बिरयानी जो अपनी सप्लाई करने जा रहा है उसके ऊपर जो बिलिंग है, उसके ऊपर जो जो बंदे इन्वॉल्व हुए हैं उसके बॉडी टेम्परेचर को उसकी लिस्ट करके उसके ऊपर प्रिंट करवा के बेच के जा रहे हैं. Just simple thing that all the people who are involved in creating this is like they are okay. There's nothing to worry into that. So next norm of building a trust, whatever you are building, what you are providing to the market, maybe an innovation also, whether it can create an impact, that trust building at the education level also is required in a big way. So partnerships, anytime we are ready, we are already started partnering with Agni, we are already partnered, the accelerators, the big accelerator within this region, we are already partnered, because we as a Until India is itself is in a startup, within the startup ecosystem. We started a couple of months back only, and this COVID came, and then we are even, I am proudly say that we are at this moment, a very few number of people either working dedicatedly on the project or dedicatedly looking for the partnership, so that the moment when the things will open, the interaction, practical interaction will start looking into the impact also. सर ये एक रिकरिंग थीम हुआ है. आज ये मेरा तीसरा वेबिनार है और ये तीनों वेबिनार में ट्रस्ट की बात हुई है. और ट्रस्ट कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कर सकते हैं, और जितने भी इनोवेशंस हैं, अल्टीमेट बेनिफिशियरी इज द सोसाइटी, द ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसका जो मेजरेबल वर्ल्ड वाइड ग्लोबल गोल है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है. तो बहुत ही अच्छा, हमने सही टाइम पे इस बात पे हमने ये वेबिनार किया है और आप भी हमको मिले हैं एज अ स्पेशल स्पीकर. सर, इसमें टेक्नोलॉजी के ट्रस्ट को लेके दो लाइन ये मुझे कहना है कि जैसे ब्लॉकचेन है, उसको लेके लोग इतना अच्छा एप्लीकेशन कर रहे हैं कि फार्म टू फोर्क कॉन्सेप्ट में, जहां जो खेत में कब जो पैदाश उगा है और कब वो हार्वेस्ट हुआ है, कब पैकिंग हुआ है, उसके बाद वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ है और कब वो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर या नजदीकी दुकान में आया, फिर आपके घर पे कब तक पहुंचा, ये पूरा ट्रैकिंग के साथ भी बहुत सारे स्टार्टअप्स कर रहे हैं. एक कमेंट आया था कि रूरल और एग्री टेक्नोलॉजी में क्या स्टार्टअप्स है, तो ये भी एक स्टार्टअप है. रूरल में ई कॉमर्स की स्टार्टअप्स भी बहुत चल रहे हैं, क्योंकि लोग भले रूरल में रहते होंगे लेकिन उनको भी सुविधा शहर की तरह चाहिए. उनको भी उतना ही डेटा स्पीड चाहिए जितना हमको चाहिए, क्योंकि डेटा स्पीड जो है लग्जरी नहीं है, वो बेसिक है. आज कोविड ने वो वापस प्रूव कर दिया है कि अगर आपके पास डेटा है तो आपकी ज्ञान चलता रहेगा, आपके पास डेटा नहीं है तो आप कोविड से बच सकते हैं लेकिन दुनिया से दूर हो जाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स अभी अपने लाइफ में देख रहे हैं. तो इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर को इम्पैक्ट को देखना है, सस्टेनेबिलिटी को देखना है, द लास्ट मैन को भी देखना है. और इसी तौर पे हम क्या सोच सकते हैं कि एक
हमारे इकोसिस्टम में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स या डेवलपमेंट्स करना चाहिए जो आपको लगता है कि हम ग्लोबल स्केल पे जा सकें, और अपनी सोसाइटी की जो प्रॉमिस है हमने जो किया है, स्टूडेंट्स ने जो करना है ड्यूटी, उसके लिए वो और सही मायने में काम कर सकते हैं। वैल्यूज सही होना चाहिए, उसके लिए इकोसिस्टम में और क्या कर सकते हैं? गुड रेजिंग दैट क्वेश्चन ऑफ दी, जैसे हम मुझे याद है जब नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क चल रहा था, उसमें लफ्ज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था लास्ट माइल कनेक्टिविटी का। जब मैं उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुआ, जब बीबीएन भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क बना, बीबीएनएल करके बना उसमें, तो सबसे बड़ी बात जो मैंने वहां पे सीखी मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहूंगा, जो इनोवेटर्स के लिए एक आज की डेट में इसे ब्रह्मास्त्र है। अगर वो कोई काम करना चाहते हैं, कोई भी आप चीज अगर काम करना चाहते हैं, उसको ग्रास रूट में उसके साथ बैठ के कुछ दिन बताएं उसके साथ। मेरे पास, मैं पिछले दिनों दिल्ली टेक्नोलॉजिकल जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके पास अबाउट मेरे कल 10 महीने हो गए, एक उनका इंटरनल कुछ डिबेट था, उसमें किया। एक लड़के ने सीवरेज को क्लीन करने के लिए अपनी एक इनोवेशन बनाई, रोबोटिक काम तैयार कर रहा था। उसमें मुझे पता है कितने खला थे, कितने गैप्स थे। मैंने उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, मैं कहा बेटा, हैव यू एवर gone and sit with those people who were cleaning the sewerage at the time of cleaning of the sewerage? He said never. So any innovation which we are building, for what I am building, and I really have to sit with them to understand each and every point, that they always say look into the basics. उसका ढक्कन वो कैसे उठाते हैं, उसके लिए भी एक सिंपल हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जो मैं जब बच्चा था तब से वो जैसे सब्बल से उसको दी हुक मार के करते हैं, उसका शेप टूट जाता है, इन फ्यूचर कीप्स लीकिंग। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल इनोवेशन हैज बीन डेवलप्ड ऑन दैट। एंड व्हेन यू ट्रैवल इन यूरोप, वहां पे आपका जो एयरपोर्ट में ट्रॉली होता है, आई हैव सीन दैट इज अ मोटराइज्ड ट्रॉली where the two who go into that and they just press a button and that lid is lifted from that. Such a simple thing. I mean, like, that's why the grassroots, when you say, and when I was working with the last mile connectivity, I really went to the school level, to the village level, to find out उनके challenges क्या आते हैं। वहां जाके हमें प्रैक्टिकली जो कॉमर्स सर्विस सेंटर्स हैं, जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर हैं, उनकी स्ट्रेंथ पता चली। See how they are managing in those places where उनकी जो इंटरनेट, हम वैसे कह रहे हैं हमारी फाइबर ले आके बिछा दी गई थी, लेकिन फाइबर में अगर हमने रिपेयर करने भी जाना, वहां पे टूटा हुआ है, तो बीएसएनएल के पास वो नहीं था। एक बड़ा इंक्लूजन वहां पे बिल्ड हुआ था, उन लोगों की स्किल डेवलप की गई थी, बिकॉज यू आर लिविंग विद इन दैट सिस्टम। लेट अस ट्रेन दोज पीपल हु आर एट दैट पॉइंट ओनली टू लुक इनटू दीज इश्यूज आल्सो, सो दैट आपकी जो मूवमेंट है, जो ये चीजें है, उसके ऊपर अराउंड हमने 3000 के करीब स्किल किए थे लोग इनके वीएलईज। इट बिकेम ए सच ए बिग, जो डीओटी ने था सीएससी को पूरा का पूरा ऑफलोड कर दिया ये रिपेयर उसका। सो आज की डेट में जब हम हेल्थ केयर की भी बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर लुकिंग इनटू द टेलीमेडिसिन, टेली प्रिस्क्रिप्शन, टेली चेक करने के लिए हम हेल्थ केयर के पीएसयू सीएससी के लिए जितने भी सिस्टम बने हैं, जो मैंने अपने नजर पे देखे हैं, वो लैपटॉप में लैपटॉप का कैमरा यूज कर रहे हैं। I request your innovations, let it come from the Gujarat first. Look into, search into the tools which they are using at the village level for transmitting the specific images. अब अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, just look into the 5 non-invasive things which on which a doctor, जो हम बच्चे होते थे, हमारा पल्स देखता था, बीपी देखता था, कान देखता था, नाक देखता था, गला देखता था, आंख देखता था। एंड 90% to 80% of the people within a PSU CSC normal practitioner can tell you that you are at what stage of your ailment at the beginning. So what we are doing, we are compromising with the images with the only webcam over there. We need a specific tools which are available in international level and is not in a rocket science. Let your people come with those things, because tele consultancy is going to be a next norm. So उसके साथ साथ
मैं एक और आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे डिजिटल इंडिया मूवमेंट आई थी पूरे हिंदुस्तान में, विद इन थिंक दैट अंडर द आपका प्राइम मिनिस्टर जी के आपके उसके ऊपर मिशन के ऊपर था, हर एक फैमिली में से वी हैड टू ट्रेन 1 पर्सन ऑन डिजिटल इंक्लूजन। आज की डेट में मैं ये सबको कहता हूं, train at least 1 person on paramedical health side in every family. Just see the challenge. मेरी लेन में अगर कल किसी को एक रूटीन में एक बंदा इंजेक्शन लेता है, उसको अगर इंजेक्शन लेने जाना है in this confined stage, can he go outside? और इफ मुझे नॉर्मल एक टेम्परेचर या मुझे नॉर्मल एक प्रॉब्लम होती है जिसके मुझे सिर्फ 4-5 पैरामीटर चेक करने हैं, उसके लिए मैं अगर बाहर जाता हूं, नो हॉस्पिटल कैन एंटरटेन मी एट दिस मोमेंट. So we need a doorstep paramedical inclusion in coming days, and these tele prescriptions, where these tools, fine-tuned tools, which a doctor can really see the real resolution pictures, will be the next norm. And this is my thought into that. And you can build that skill within your village level people, where the connectivity, I know these days is not a major issue because these images not take much of your bandwidth, and the people who are already maintaining those CSN, they are already aware of the PSC inclusion, and then they have already worked on some level into the telemedicine also. Bring this to the next level. This is again a small submission to where the Gujarat can take a lead into that. सर, जो आपने कहा है कि यूजर के साथ बैठ के उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, तो इसी चीज को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में करने के लिए गुजरात में ये डिसीजन लिया है और सभी यूनिवर्सिटीज उसमें काम कर रहे हैं कि डिजाइन थिंकिंग को एक क्रेडिट के साथ वाला कोर्स बना दें और सभी स्टूडेंट्स को उसको दे दें ऑप्शनल में, ताकि वो स्टूडेंट जिसको इंटरेस्ट है वो फॉर्मली उसको प्रॉपरली सीख सके, क्योंकि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है जो डिजाइन थिंकिंग को यूज करने के लिए। तो उसमें हम लोग ऐसा एक स्टेप ले रहे हैं डिजाइन थिंकिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए। सर, अभी काफी डिस्कशन हुआ है और हम अपने डिस्कशन और टाइमिंग की एंड पे आ रहे हैं, तो एक दो क्वेश्चन बाकी है जो मुझे अभी भी आपसे पूछना है कि आपको जो इनोवेटर्स और मेंटर्स हैं, आज ऑडियंस में ज्यादातर लोग हैं, उनको और कैसे अच्छा करना चाहिए और उन लोगों को क्या सजेशन है कि वो बढ़िया से कर सके? सबसे पहली चीज जो मैं टच करूंगा, मेंटर्स से स्टार्ट करूंगा। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर लाइफ में आपको पूरी जर्नी में अगर एक मेंटर आपको ठीक मिल जाता है, योर होल लाइफ इज चेंज्ड। ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली वी हैव सीन दिस। वो एक मेंटर कौन सा होगा, उसको जज करना, उसको अपने अंदर से ये उसको कहना भी मैं एक मेंटर हूं, नॉट जस्ट दी सिर्फ मैं एज ए सर्टिफाइड मेंटर हूं, नॉट लाइक दैट, ए मेंटर फ्रॉम इनसाइड। वो उस्ताद, वो गुरु, वो चाहिए आज की डेट में। और वो कैसे ट्रेंड होगा, वो कैसे स्टूडेंट को जज करेगा, वो इस तभी कर सकता है जब हम कई बार कहते हैं अगर वो खुद इस पूरे जुनून से निकला हुआ है। सो प्राइमा फेसिया हमारी सिटिंग एट द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, एट द टॉप लेवल, not intervening into the whole ecosystem, keep judging from a distance, experimenting in choosing the real mentors, because they can change the life of your innovation systems to one side or can tilt to another side, where the whole story will be in a new picture, in the new canvas also. So that's my very personal observation, and who has to judge it? You have to create your own ecosystem. मैं अंतिल की आपको एग्जांपल देता हूं, हमने इसमें कैसे हम we have created some advisory committees, advisory boards you can say, जैसे ओपन सोर्स के ऊपर वर्ल्ड रिनाउंड जो पर्सनैलिटीज हैं उनको इकट्ठा करके एज ए उस पे लेके आए हैं। उधर हमने आईपी के ऊपर वी हैव क्रिएटेड एन एडवाइजरी बोर्ड। कल को अगर इन इनोवेशन के लोगों को किसी किस्म की अगर जरूरत पड़ती है, so we can link to our advisory boards
through virtually, and they can guide. They are the people who are just worked, spend their whole life, and they don't have any interest just to make people grow into their fields only in the right direction. So ये mental setup academia में ले आना और उसको sensitize करना, एक मैं ये कहता हूँ this is a high time जो हम इसको पूरी revolutions को encash कर सकते हैं इस वक्त. And there are very good mentors in the academia. We have to provide them the opportunities in real sense. Let them come, let them talk anything, let them discuss those things, but keep monitoring their impact through those innovators, through people who are working along with them. That is the one part. अब innovations को accelerate करना, उसके लिए मुझे किसी ने पूछा, मैंने बड़े सिंपल से उसको लफ्जों में बताया था. मैंने कहा इनोवेशन में अगर स्टूडेंट्स को अगर आना है, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, एंटरप्रेन्योर कौन होता है क्या नहीं होता, तो मैं उसको ये कहा था उनके जो डीएनए में कुछ चीजें उसकी इनबिल्ट होनी बहुत जरूरी है. एवरीबॉडी कांट बी एन इनोवेटर. If I am an entrepreneur, I also need some skilled people to work under me also. So there is a parallel things which are going on. I have to serve, even I have to create a job also. So DNA में अगर उसके आप देखते हो उसकी जो ब्रेवनेस है, उसकी हाई इंटेग्रिटी है और उसकी स्टूपिडनेस है, वो कैसे क्वेश्चन करता है अपनी टीम के क्वेश्चन, उसको कैसे करते हैं. और किसी एक उसने आर्टिकल में अभी पिछले दिन हो रहा था, वो कहता वो है तो इसको क्या इन्वेस्टमेंट है, इसकी इनोवेटर की क्या इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसने 7 चीजें बोली. कहता माइंड, बॉडी, हार्ट, सोल, ब्लड, स्वेट एंड टीयर. ये इसमें से अगर वो चीजें इन्वेस्ट करता है अपनी, तो he is a real innovator. Don't think of the finances. If somebody is coming to me today also as an innovator, sir, मेरी ये innovation finance कैसे होगी, the very first thing I will give him a cup of tea and say thank you. That mindset you have to change from the academia with the youth only. That is a requirement. Then these entrepreneurs, they work within a mindset, what you call with an authority to say, take fast decisions only, which we are lagging. Because of our norms, our regulations, sometimes we don't take. मैं इसके एग्जांपल अपनी सबको देता हूँ. सब लोगों ने मुझे प्रैक्टिकली देखा है. जब 12 साल रूइन की हुई एक जगह के ऊपर मैंने रिस्क लेना था, only one person was with me, that was my secretary, and he was sitting at Chandigarh and I was at Gurgaon. And the only thing which I take from my heart, आज की डेट में सबको ओपनली कहता हूँ, मैंने उनको जब यहाँ करने के लिए आया था ये चैलेंज, मैंने उनको अपना रेजिग्नेशन उनके हाथ में दे दिया था. तो उन्होंने मुझे पूछा ये क्यों दे रहा है तू. मैंने कहा दिस विल टेक 2 type of fears out of me. One is as a सरकारी person as in a transfer. Second is suspension. If you endorse it and put a date anytime into it, I will go and venture into this startup only. He agreed to it, and I salute him at any platform that he is the person who really, and we need these type of people when you are building a startup ecosystem. Risk taking, don't worry about मेरा पैसा इधर को जा रहा है, पैसा आ जाता है आपके पास, your impact आ जाता है. Real life problems देखो, कैसे उसका solution देना है उसको देखो, ग्रास रूट पे ऊपर वो बैठो. आज हॉस्पिटल में हम बिल्ड कर रहे हैं, वेंटिलेटर के ऊपर सारे कंसंट्रेट कर गए, मास्क के ऊपर एवरीबॉडी कंसंट्रेट. जब टाइम मिलता है सिमुलेट किए हुए ओटी थिएटर देखो, जो ओटी थिएटर में डॉक्टर खड़ा है उसकी प्रॉब्लम स्टडी करो. आज भी वो तड़पता है जब उसके ऊपर ये पूरा गाउन डाला होता है, उसको सांस लेने की कितनी अंदर दिक्कत आती है. एंड वंस यू आर इन दैट क्लैस्ट्रोफोबिया and you can't even communicate in a proper way, you are covered from all sides, and those communication, that claustrophobia coming out, and then you are in that dress जो space में डालने वाले हैं, एक दिन में एक मिलती है आपको, and you are with the like adult drapers with you, and you can't go in for in the your washroom also. Look into those challenges in due course of time, how you can build into that. हट के बात करो, not on a regular. सब वेंटिलेटर के ऊपर बात कर रहे हैं, वेंटिलेटर बहुत आ चुके हैं, बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा. Look into other directions also. Thank you. Sir, choosing the right problem is a very important strategy for an entrepreneur. तो right problem में उसका सही मायने में उसका solution आना चाहिए, सही impact आना चाहिए, सोसाइटी को broad benefit होना चाहिए, साथ में पैसा बनाने के option हो तो बिल्कुल बनाइए. ये एक criteria हम रख सकते हैं. और सर आपने mentor की बात सही की है
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी अपने हाई स्कूल टीचर को इतना याद करते थे कि वो प्रेसिडेंट बन के भी वही टीचर को मिस करते थे। वो हाई स्कूल के बाद तो उन्होंने उनको टीचिंग करना तो छोड़ दिया होगा, बट एज अ मेंटर उनके पूरे लाइफ रहे हैं। तो मैं तो ये भी सोचता हूँ कि हमारे जितने भी अभी स्टार्टअप्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके मेंटर के साथ का नाता तो पूरा जिंदगी रहने वाला ही है। तो ये कोई काम नहीं है कि हम आज कर दें कल पगार लेके चले जाए। ये हमारी जो ह्यूमन की बर्थ है उसकी कर्मा समझ सकते हैं कि ईश्वर ने हमको ऐसा एक योगदान दिया है। दूसरा, एंटरप्रेन्योर को भी ये समझना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टअप जर्नी जो है वो धंधे की जर्नी नहीं है, कोई काम करने की जर्नी नहीं है, कि कोई अचीवमेंट करने की जर्नी नहीं है। वो सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है कि आप कौन हो, आपको क्या आता है, आपको क्या करना चाहिए दुनिया में। तो हम सब लोग इसी जर्नी पे हैं। तो अगर आपको स्टार्टअप की रास्ता लेना है तो भी आप भगवान तक पहुंच सकते हो। ऐसा भी मुझे ये सब आइडिया सुन के ख्याल आता है। तो आपने बहुत बड़ी और अच्छी बातें कही है सर, और काफी इंटरेस्टिंग रहा है। तो एक रैपिंग अप कमेंट्स के लिए मैं हिरणमय को बोलूंगा कि इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट आउट की जो आप करना चाहते हैं, और आई हैव और इवन टेक्नोलॉजी लैब साथ में कैसे काम करें, उसका कुछ मुद्दा भी थोड़ा सा आप रख दो, तो फिर हम आगे लेके जा सकते हैं। राजीव जी, दो तीन सजेशंस भी है क्वेश्चन की तरफ से। डॉक्टर राजुल गज्जर, फॉर्मर वाइस चांसलर जीटीयू एलडी कॉलेज के प्रिंसिपल, वो कह रहे हैं कि हम लोग ओपन इनोवेशन चैलेंज इस बार कोविड पे किया गुजरात सरकार में, जिसमें 1000 से ज्यादा टीम ने पार्टिसिपेट किए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर गुजरात सरकार और अंटिल मिलके एसडीजी पे एक ओपन इनोवेशन चैलेंज करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो एक निष्कर्ष आज की 1 घंटे के मंथन का ये भी है, हम लोग इस पे काम करें। एंड आपकी जो टेक्निकल टीम है यूनाइटेड नेशन टेक्नोलॉजी लैब का, तो गुजरात की बच्चे डेफिनेटली उसमें जुड़े हैं और हम लोग उनको प्रायोरिटी एसडीजीज ले सकते हैं। जैसे आपने कहा, टोटल में से जो इम्पोर्टेंट है, वी कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड स्पेशली डू ए स्पेशल राउंड ऑफ ओपन इनोवेशन चैलेंज विद यू। सो दैट्स वन। सेकेंड, एक सजेशन इस क्वेरी में आया था कि इन इनोवेशंस को जो एसडीजीज पे काम करने वाले, उन्हें आप कुछ स्पेशल सपोर्ट देंगे क्या? जरूर, क्योंकि अगर कोई ई कॉमर्स कंपनी बना के अपने कंपनी के वैल्यूएशन 5 गुना करके 2000 करोड़ का इक्विटी पा रहा है, वो जो एंटरप्रेन्योर है वो भी उतना इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए वो इनोवेटर भी इंपॉर्टेंट है जो एक नया नानो फाइबर का मेम्ब्रेन बना रहा है, जो गाँव में जाके किसी का वाटर पानी साफ करने का छोटा सा टैंक लगा सकता है। तो हम लोग कहीं पे जो है सिर्फ विटामिन एम की बात नहीं कर रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी की बात नहीं कर रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी की भी बात कर रहे हैं। जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो इनोवेशन हैं, तो एक तो ये करेंगे। कुछ इनोवेटर्स ये पूछ रहे थे इस ग्रुप में कि जो गुजरात के बाहर हैं, पहली बात तो थैंक यू, आप लोग ज्वाइन करते हो हमारे सेशंस को। हमको सुविधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि राजीव जी, गुजरात अकेला स्टेट है जहां पे ये स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी है। स्टार्टअप इंडिया के अंदर में अगर आप देखेंगे तो सब स्टेट्स के पास पॉलिसी और एंटिटी तो बन गया है, लेकिन प्री इंक्यूबेशन में और यूनिवर्सिटी इनोवेशंस में इनोवेटर के खाते में महीने के एंड में उसकी प्रपोजल के लिए उसको सुविधा या जोखिम राशि देने के प्रावधान सिर्फ गुजरात में है। लेकिन जब हमने सोचा कि हम लोग इनोवेशन को सपोर्ट करेंगे, तो हमने कभी बाउंड्री लिमिट्स नहीं रखा है। तो इस वेबिनार के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, हमने एक स्पेशल राउंड चालू किया है, उसको कहते हैं ओपन इनोवेशन चैलेंज। तो जो विद्यार्थी डायरेक्टली किसी कॉलेज से जुड़े हुए नहीं हैं, वो लोग भी इस ओपन इनोवेशन चैलेंज के राउंड के द्वारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हमारे गुजरात के विद्यार्थी उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो हमारा जो इनोवेशन हब का मकसद है, इनोवेटर जो गुजरात में है और दुनिया के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करता है, या तो दुनिया में कहीं पे है और गुजरात की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये जो वेबिनार सीरीज चालू किए हैं, इसमें आप जैसे लोगों को, मेहमान को हम लोग बुलाते हैं ताकि एक नया पर्सपेक्टिव मिले, और हम लोग नागराजन सर खुद इसको क्यूरेट करते हैं ताकि एक स्टेट की जो हाईएस्ट ओनरशिप है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, उनकी इस चीज पे एक बहुत बड़ी अहम योगदान है, और उनकी ओनरशिप इस चीज को एक्सेलरेट करने में मदद करता है। तो हम लोग सिर्फ एक्सेलरेटर इनोवेटर के लिए नहीं बनाना चाहते हैं, हम एक्सेलरेटर कॉलेजेस के लिए बनाना चाहते हैं, ताकि कॉलेज की जो फैकल्टी है वो भी एक्सेलरेट हो, यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर्स वो भी एक्सेलरेट हो, स्टेट की पॉलिसी मेकर वो भी एक्सेलरेट हो। तो हम लोग जब इंक्यूबेशन की बात करते हैं तो पूरे वैल्यू चेन का इंक्यूबेशन की बात करते हैं। जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो पूरे स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं। तो एक होलिस्टिक इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने की प्रयास है, और हमारे पास हर क्वार्टर का, हर साल का और हर 5 साल की एक रोड मैप है,
जिसमें हम कम से कम गुजरात को इंक्लूसिव इनोवेशन का और ओपन इनोवेशन का एक ग्लोबल डेस्टिनेशन हब बनाना चाहते हैं, ताकि दुनिया की कोई भी आदमी, एक सैम पिट्रोदा कहते हैं कि दुनिया की बेस्ट प्रिंट्स जो हैं वो सिर्फ कॉर्पोरेट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो अच्छे बच्चे IIT IIM में जाते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों MNC की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन हमारे प्रयास ये है कि हमारा जो बेस्ट ब्रेन है इस देश की पुरानी जो सदियों की पुराने चैलेंजेस हैं उनको भी सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद एंटरप्रेन्योर बने और सबके लिए वैल्यू और इम्पैक्ट क्रिएट करें। ये हमारा एक मूलभूत उद्देश्य है। सर, आपका कोई रैपिंग अप कमेंट्स? I will just say thank you very much for this, and point taken very gracefully and seriously. जो आपके चीजें चल रही हैं गुजरात में, I feel proud that I joined this webinar with you. Thank you, Harmane ji, for organizing this, and thank you, Shri Nagarajan ji, sparing this time with us only. SDGs के ऊपर hackathon and all those things, there are already many requests from different angles. सबसे पहले हमें इनको sensitize करना है. Couple of startups started working with us for school से SDGs के ऊपर gamification के ऊपर काम कर रहे हैं. फिनलैंड के साथ हमने कुछ एजुकेशंस के जो इनोवेटर्स हैं उनको इसके ऊपर अपने इंक्लूड कर लिया है जो काम कर रहे हैं. इधर से इंडिया से एक स्टार्टअप्स को उसके साथ मिलाया है. तो यूनिसेफ के साथ हम बड़ा क्लोजली काम करना शुरू कर दिया आज की डेट में. अंतिल एंड यूनिसेफ में जो आपकी ई लर्निंग को है उसको कितना हम इंटरेस्टिंग और कितना उसमें बढ़ा सकें, और उसमें ये SDGs का इंक्लूजन ऐसे ने जो आप कहते हैं ना, एक खुद का इंटरेस्ट बनना शुरू हो इसका, टू बिल्ड दिस सोसाइटी वर्थ लिविंग ए सोसाइटी जहाँ पे टेक्नोलॉजीज आर रियली क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट. तो उसके लिए yes, we will definitely look for a good opportunity where we can go and organize this. First is main चीज required is आपका sensitization of these people are different, taking couple of thematics, looking into what are the major challenges into that and how these can be linked into the SDGs, and then creating a hackathon into that direction. Thank you very much, and I really feel obliged and happy that even I learned a lot, that states like you as a pioneer state where you are bringing the youth at front end. So I will recommend couple of sites to Harmane. I will mail you, share it with your ecosystem where they can keep reading as a youth inclusion, as an innovation inclusion from the UN perspective, from the SDG perspective, and it will going to definitely help us out. Thank you, sir. On behalf of all the attendees on the Facebook and on the Zoom platform, I extend my heartfelt thanks to you for joining us. आपने काफी अच्छी आइडिया शेयर किए हैं, और सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशंस दुनिया के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इंडिया के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, और यूनाइटेड नेशंस की टेक्नोलॉजी लैब है उसको इनोवेशन की ओर में बहुत बढ़ावा दे रहा है, ये भी हम लोग समझे हैं. और आपकी जो आइडियाज हैं और गुजरात में जो एक्सपीरियंसेस हैं इसको कंबाइन करके आगे ले जाएंगे. एक बढ़िया सा मुझे विजन दिख रहा है कि अटल इनोवेशन मिशन के अंदर जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं उसमें 15-20 लाख बच्चे हमारे हैं जो एक्सपोजर हो रहे हैं. उसमें से कुछ जो क्रीम बच्चे हैं ऊपर आएंगे, SSIP में ग्रेजुएट होंगे, उनके आइडियाज और स्टार्टअप्स पेटेंट होंगे, और ऊपर आएंगे तो फिर आपके साथ पार्टनरशिप करके फिर अदर जो फ्लैगशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रोग्राम्स हैं जैसे अग्नि है, ये सब में हम फ्लैगशिप करके उनको ग्रेजुएट करके दुनिया में आगे कर सकते हैं. तो ये सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप बढ़िया सा बन सकता है. एंड थैंक यू फॉर योर काइंड सजेशंस, एंड वी विल सर्टेनली ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम, एंड वी लुक फॉरवर्ड कि आपके साथ भी हम काम करें और आपके यूनाइटेड नेशंस टेक्नोलॉजी लैब के साथ काम करें, नॉट जस्ट फॉर स्टार्टअप्स बट सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्टार्टअप्स, एंड टू मेक इनोवेशंस वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम सही मायने में सब लोग मिलके हासिल करें. इसी आशा के साथ मैं आपसे भी विदाई लेता हूं और सभी जो दर्शकों हैं उनसे भी विदाई लेता हूं. थैंक यू so much for joining us today. Thank you very much. Thank you.